नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं। पर आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नेशनल कराटे चैंपियनशिप के विजेताओं को किया गया सम्मानित। उत्तराखंड खेल मंत्री रेखा आर्या ने पदक विजेताओं को पहनाए मेडल। कहा, अब खिलाड़ियों को करियर की चिंता करने की जरूरत नहीं। सोनभद्र में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत। डॉक्टरों ने मौत को दिया बेहोशी का नाम। परिजनों ने की अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई। झारखंड पुलिस की बड़ी सफलता। अवैध हथियारों की खरीदी बिक्री करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। श्रीवास्तव ग्रुप को करते थे तस्कर हथियार सप्लाई। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बदमाशों ने मांगी जीएम से 10 लाख की रंगदारी। पुलिस ने मामले में की कई गिरफ्तारी। देहरादून में बढ़ रहे डेंगू के मामले। जिले में मिले डेंगू के 5 नए मरीज। 99 पहुंची डेंगू मरीजों की संख्या। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किजरापू ने कहा कि पिछले 2 दिन बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास हुई दुर्घटना से पूरा देश स्तब्ध है। इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल पर गया था ताकि देख सकूं कि क्या किया जाना चाहिए, क्या सहायता प्रदान की जानी चाहिए, और यही गुजरात सरकार का रवैया था। 2 days have been very difficult, especially in the ministry and for everyone else. The accident that has happened near Ahmedabad airport shook the entire nation. And my deepest condolences to all the families who have lost their loved ones in the incident. I have also personally lost my father in a road accident. So to a certain extent, I can understand the pain and anguish that the family members are feeling. And in fact, it was a moment of shock right after we got to know about the incident. But even in that disbelief, I personally rushed to the site to oversee what needs to be done, what support needs to be provided. And that was the attitude of the government of Gujarat also. The attitude was the same from government of India and the other people at the ministry also. And once we rushed to the site, we already saw, this was just within hours of the happening of the incident. So once I arrived at the site, the government of Gujarat already put in the necessary rescue teams, the response teams from all the concerned departments were working on ground actively, trying to rescue whatever is possible, trying to cut down the fire and to move the debris so that the bodies can be sent to the hospital at the earliest. And with the timely response, things were able to move much faster than as was expected after looking at how the crash has happened at the site. And from the ministry, taking utmost seriousness of the incident, the Aircraft Accident Investigation Bureau, which was formed specifically to look into the accidents that happen around aircrafts, was immediately mobilized. And the GO team from the AIB, including 5 members constituting DG AIB, was also immediately rushed to the site to start the investigation process. And since day one, within hours itself, the AIB has started its process of investigation. And yesterday, they have added 2 more members to the investigation, one from the forensics team, one from the medical team. And they would be doing it in future also as necessary. Whichever expert is required, they will be adding them to the investigation. And one important update from the technical investigation, which is happening through the AIB, is the recovery of the black box yesterday around 5 p.m.
from the site. The AIB team believes that this decoding of the black box is going to give a in-depth insight into what would have actually happened during the process of the crash or moments before the crash itself. So we are also eagerly waiting for what the results or the report is going to be once the AIB goes through its full investigation. केरल दौरे के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अहमदाबाद हादसे पर दुख जताया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि ऐसे समय में जब पूरा देश शोक मना रहा है, जब हमने इतने सारे लोगों को खो दिया है, हम सभी को अपने दुख में एकजुट होना चाहिए और उन लोगों के परिवारों के प्रति यथासंभव एकजुटता दिखानी चाहिए। Nobody can stop this accident, but it become controversy and raising criticism. It's a sensitive statement. How do you see that? I just feel that at a time when the whole nation is grieving, when we have lost so many people, young, old, people from all different walks of life, we should be united in our grief. We should provide as much solidarity as we can to the families of the passengers and all the others who have lost their lives, even the students from the medical college who have lost their life. And for all of us, I think it is a moment where we need to stand together and to just provide solidarity. And also it is very important to understand what went wrong, because so many lives have been lost. It is extremely important. I think it is being investigated. I am sure that the investigating agencies will in the next few days enlighten the nation as to what happened, and then in the future whatever corrective measures need to be taken will be taken to protect people and to protect lives. I think that should be the course of action. अगली खबर देहरादून से है, जहां सीमा स्तरीय ट्रैकिंग अभियान चलाया गया। हिमांतरी 2025 के शुभारंभ समारोह में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, जिसके बाद सीएम ने सबसे पहले अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। सीएम ने कहा कि मैं हमारी ट्रैकिंग टीम के सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। वे एक चुनौतीपूर्ण यात्रा करेंगे, इससे संवेदनशील क्षेत्रों और सीमा क्षेत्र की निगरानी में मदद मिलेगी। मैं सबसे पहले तो अभी परसों जो अहमदाबाद में हुई भीषण विमान दुर्घटना में दिवंगत हुए हैं, उन सभी यात्रियों को अपनी भावहीन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस हृदय विदारक घटना से प्रभावित हुए सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना एवं सहानुभूति प्रकट करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को, जो इस समय में असमय एक बड़ी कठिन उनके लिए समय आया है, असीम पीड़ा हुई है, इस असीम पीड़ा को, इस कष्ट को सहन करने की उनको शक्ति प्रदान करे। दिवंगत आत्माओं को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। साथियों, मैं आज हिमाद्री ट्रैकिंग अभियान के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में उपस्थित होकर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारियों, वीर जवानों एवं आप सभी महानुभावों का मैं आज मुख्य सेवक सदन में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस विशिष्ट अभियान में भाग लेने वाले ट्रैकिंग टीम के सभी हमारे साहसी जवान, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का ये एक कठिन अभियान सकुशल संपन्न हो और बाबा की कृपा, हमारे सभी धामों की कृपा, देवभूमि उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर बने, उनका आशीर्वाद आप पर बने। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आईटीबीपी के हिमाद्री ट्रैकिंग अभियान का फ्लैग ऑफ करने का और आप सबके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और मुझे बताया गया कि इस अभियान में आईटीबीपी के 45 सदस्यीय ट्रैकिंग दल उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश होते हुए लद्दाख तक, अभी जैसा यहाँ पर दिखाया जी हमारे
उनके द्वारा जो सारा इस कार्यक्रम को हम सबके समक्ष रखा गया, लद्दाख से शुरू होकर लगभग 1032 किलोमीटर की जो चुनौतीपूर्ण यात्रा है, मैं इसको साहसिक यात्रा कहूँगा। इस साहसिक यात्रा को आप सबके द्वारा पूरा किया जाएगा। साथ ही इस अभियान के माध्यम से जहां एक और सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक दृष्टि से संवेदनशील जो हमारे स्थान हैं, उनकी निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की पहचान कर वहां की स्थानीय परंपराओं को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया जाएगा और नई घाटियों की पहचान करने और बंद पड़े पारंपरिक ट्रैकिंग मार्गों को पुनः सक्रिय करने में भी यह अभियान बहुत सहायक सिद्ध होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई पर कहा कि जिन परियोजनाओं के लिए जमीन खरीदते थे, उन परियोजनाओं में उसका इस्तेमाल ना करके अनेक प्रकार के दुरुपयोग की जानकारी मिलती थी। उत्तराखंड के लोगों की अपेक्षा थी कि एक भू कानून लाया जाए। इसके लिए हम भू कानून लाए हैं और इसे तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान सीएम ने चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि ये यात्रा काफी संतुलित तरीके से चल रही है। कई स्तरों पर इसकी समीक्षा हुई है। 1 महीने और 14 दिन की यात्रा हो चुकी है। इसमें लगभग 28 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वालों को खिलाफ आपने सख्त निर्देश दिए थे, असर उसका दिखना शुरू हो गया। देहरादून में भी कल 900 बीघा जमीन जो है वो सरकार में नहीं थी। किस तरीके से अभियान को आप देख रहे हैं? देखिए, भू कानून, चूंकि जो भू कानून तोड़ने वाले हैं और जिससे राज्य की जमीनों की अनाप शनाप खरीद होती थी, बड़े बड़े लैंड बैंक बना दिए जाते थे और जो लोग जिन प्रयोजनों के लिए भूमि को क्रय करते थे, उन प्रयोजनों में उसका उपयोग न करके अनेक प्रकार के दुरुपयोग की तमाम जानकारियां मिलती थी, तमाम इस प्रकार की सूचनाएं आती थी और उत्तराखंड राज्य के लोगों ने भी लगातार ये अपेक्षा करी थी कि उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून होना चाहिए। वो भू कानून हम लाए हैं और जो भी अब भू कानून को तोड़ रहे हैं या उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। 100 महीने में ही 10 लाख के करीब पूरी चारधाम यात्रा इस बार काफ़ी संतुलित तरीके से चल रही है और हमने पहले से ही चूँकि लगातार इसकी समीक्षा की है, कई स्तर पर समीक्षा हुई है और पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं, उन अनुभव के आधार पर यात्रा अच्छी हो और जो तीर्थयात्री श्रद्धालु हमारे यात्रा में आते हैं देश भर के, दुनिया भर के, उनकी सुरक्षा हमारे लिए हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और देश भर के लोगों का एक विश्वास भी बना है। और अभी तक जो यात्रा लगभग 1 माह और 14 दिनों की यात्रा लगभग हो चुकी है और इसमें अभी तक 28 लाख तीर्थयात्री श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं और बहुत सामान्य तरीके से, अच्छे तरीके से यात्रा चल रही है। आगे भी इसी प्रकार हमारा प्रयास रहेगा, यात्रा सुचारू रूप से सफल हो। सर, एक आखिरी सवाल, कल कैची धाम में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए कोई संदेश? चूँकि मैं सभी से यही कहूँगा कि बाबा के स्थान पर अपनी मनोकामना के लिए आते हैं, बाबा उन पर आशीर्वाद बनाएं और साथ ही जो यात्रा के नियम हैं, चूँकि बड़ी संख्या लगभग 4 लाख 5 लाख की संख्या एक दिन में उस धाम पर जो उनका वार्षिकोत्सव होता है उस दिन होती है, इसलिए सभी लोग इस यात्रा को, ट्रैफिक को, अन्य प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उसको संचालन में अपना सहयोग प्रदान करें और अच्छी यात्रा करके जहां स्वयं अच्छी यात्रा का अनुभव लें, दूसरों को भी अच्छा अनुभव करवाएं और यात्रा के जो नियम हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते समय यात्रा के नियम हैं, उन नियमों का पालन करें, जिसमें स्वच्छता से लेकर दूसरे लोगों को अच्छे प्रकार से देखना, अच्छे प्रकार से करना, सबका सहयोग करना और किसी को आपकी यात्रा से परेशानी न हो। खबर देहरादून से है, जहां खेल मंत्री रेखा आर्य ने शुक्रवार को परेड ग्राउंड के मल्टीपर्पज हॉल में चल रही चौथी कियो नेशनल कराटे चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने बीते माह उज्बेकिस्तान में देश के लिए मेडल जीतने वाले 3 खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। खेल मंत्री ने कहा कि अब खिलाड़ियों को अपने करियर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जैसे ही प्रदेश के लिए पदक जीत कर लाएंगे, सरकारी नौकरी उनकी प्रतीक्षा करती मरेगी। ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने पर नौकरी में रिजर्वेशन ज्यादातर राज्यों में दिया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को भी आरक्षण के दायरे में लाया गया है।
कांग्रेस नेता और हरिद्वार लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे वीरेंद्र रावत ने हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत पर क्षेत्र से नदारद रहने के आरोप लगाए हैं। हरिद्वार प्रेस क्लब में कांग्रेस नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे वीरेंद्र रावत ने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। वीरेंद्र रावत ने महंगाई और प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर सवाल उठाए। साथ ही वीरेंद्र रावत ने कहा कि पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पर जिस तरह से क्षेत्र के लोगों के बीच नदारद रहने के आरोप लगे थे, उसी तरह सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए भी पिछले 1 साल में पोस्टर लगाए गए हैं। लेकिन महंगाई चौगुनी गति से जो है बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 2 करोड़ छोड़िए, हमारे उत्तराखंड में ही 85,000 पद जो है सरकार में खाली पड़े हुए हैं। जो चीज़ निशंक जी के लिए कही जाती थी कि वो क्षेत्र में नहीं आते हैं और उनके लिए बड़े बड़े पोस्टर छपते थे कि सांसद का पता बताने वाले को 50,000 रुपये इनाम मिलेगा, वही पोस्टर मुझे 1 साल में जो है त्रिवेंद्र रावत जी के लिए भी दिखाई दिए। 1 रुपये का काम कहीं, चाहे वो शहर में हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, माननीय सांसद महोदय के निधि से नहीं लगा है। देहरादून जिले में एक बार फिर डेंगू और कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। जिले में डेंगू के 5 नए मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि अब डेंगू मरीजों की संख्या 99 हो गई है। जिले भर में 56 घरों में डेंगू वायरस का लार्वा भी मिला है, जो कि चिंता का विषय है। अब बात कोरोना की करें तो उत्तराखंड में 3 और लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। देहरादून में अब तक 420 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है और अब तक 44 मरीजों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 36 मामले देहरादून, 1 मामला हरिद्वार का है और 7 पॉजिटिव मरीज राज्य के बाहर से हैं। वर्तमान में 5 एक्टिव केस हैं। इनमें से 2 मरीज सुभारती अस्पताल में एडमिट है। 3 मरीज होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। हल्द्वानी में मानसून के सीजन में सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाले देवखड़ी और रक्सिया नाले में प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करते हुए नोटिस जारी किया है। देवखड़ी नाले में जहां 206 लोगों ने अतिक्रमण किया है, तो वहीं रक्सिया नाले में 386 लोगों ने अतिक्रमण किया है, जिन सभी को 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। उप जिलाधिकारी राहुल शाह का कहना है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी विभागों की टीमों द्वारा सर्वे किया गया, जिसमें यह सभी अतिक्रमण पाए गए हैं, जिनका 15 दिन के भीतर हटाने के निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया गया है। देवखड़ी नाले में और कलसिया नाले में और एवं रक्सिया नाले में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जांच समिति गठित किया गई थी, जिसके माध्यम से नालों पे जो अतिक्रमण उसको चिन्हित किया जाना था। उस समिति में आपके जीआईएस एक्सपर्ट भी थे, आपके जियोलॉजिस्ट भी थे, सिंचाई विभाग के अधिकारी थे, वन विभाग के अधिकारी थे, नगर निगम के अधिकारी थे और राजस्व विभाग के अधिकारी थे। सभी के द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में देवखड़ी नाले में 206 अतिक्रमण अभी तक चिन्हित कर दिए गए हैं, उन सभी को नोटिस दिया जा रहा है। इसके अलावा रक्सिया नाले में 386 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, उन सभी को नोटिस दिया जा रहा है। जो भी अतिक्रमण उनको अतिक्रमण करता है, उनको 15 दिवस का समय दिया गया अपना अतिक्रमण समय हटाएं। अगर नहीं हटाते हैं तो बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऋषिकेश रेंज में युवक पर हमला करने वाला टाइगर ही था। आखिरकार वन विभाग ने ये मान ही लिया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लाए गए बाघ ने ही युवक पर हमला किया था, जिसके चलते युवक की मौत हो गई थी। खास बात यह है कि अभी ये टाइगर राजाजी रिजर्व में वापस नहीं लौटा है और इसने अपना ठिकाना ऋषिकेश और बड़कोट रेंज के आसपास ही बना लिया है। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ रेंजर कुमार मिश्रा ने बताया कि इस टाइगर ने आदतन युवक पर हमला नहीं किया है, इसलिए इसे मैन ईटर कहना गलत होगा। बावजूद इसके करीब 30 से ज्यादा कर्मचारी इस टाइगर पर 24 घंटे नजर रख रहे हैं। राजाजी के डायरेक्टर कोको रोसे के नेतृत्व में टाइगर पर निगरानी रखी जा रही है। नहीं, वो तो जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था उसी का लोकेशन के अनुसार इतने नज़दीक लोकेशन था, वो तो डेफिनेटली टाइगर का, क्योंकि टाइगर जैसे होता है उसके पास तो लेपर्ड होता नहीं है, तो वो टाइगर का ही था, इसमें कोई दोहराई बात नहीं है। ये मैन ईटर तो अभी देखिए, मैन ईटर किसको बोलते हैं? जो हैबिचुअल आदमी के ऊपर ही निर्भर करके जीता है। एक एक्सीडेंटली हो जाता है ना, अगर जैसे हमारा जंगल के अंदर घूमना फिरना तो मोस्ट अलाउड है, कोई बात नहीं है, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर, टाइगर रिजर्व के अंदर, नेशनल पार्क के अंदर क्योंकि जानवर का संख्या ज़्यादा होता है, तो उस जगह पे बिना अनुमति तो पहले जाना ठीक नहीं रहता,
क्योंकि सुरक्षा सब सर्वोपरि है। लेकिन अगर वहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट होता है और पता है कि वहाँ पर लेपर्ड है, टाइगर है, हाथी है, तब तो फिर इस प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली, इसीलिए तो हमने अवेयरनेस की बात कर रहे हैं कि आप जाने से पहले कम से कम अपना सुरक्षा के ध्यान रखिए कि जिस एरिया में आप एंटर कर रहे हैं और लगातार एंटर कर रहे हैं डिफरेंट रीजन के अनुसार, तो आपने अगर अपने फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे तो डेफिनेटली उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा ना इंसिडेंट का। हजारीबाग के तरहेसा जंगल में बड़ी नक्सली वारदात की तैयारी कर रहे उग्रवादी संगठन टीएसपीसी को तगड़ा झटका लगा है। एरिया कमांडर समेत 5 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के वक्त उग्रवादियों के पास से अमेरिकी राइफल, देसी हथियार, भारी मात्रा में कारतूस, संगठन से जुड़े पर्चे बरामद किए गए। गिरफ्तार उग्रवादी पलामू, चतरा और हजारीबाग के रहने वाले हैं। इसमें मुख्य नाम अवधेश उर्फ प्रशांत का है, जो टीएसपीसी का एरिया कमांडर है और 7 वर्षों से फरार था। उस पर हजारीबाग के अलग अलग थानों में कई संगीन मामले दर्ज हैं। हाँ, ये 1 तारीख को केरेडारी क्षेत्र में पगार ओपी में जो माइंस में 2 गाड़ियों में आग लगाया गया था और पर्चा फेंका गया था 2 हाईवा में, तो उसकी जिम्मेवारी टीएसपीसी के द्वारा ली गई थी और पर्चे में लेवी का डिमांड किया गया था। तो उस घटना के बाद मेरे स्तर से एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ सदर, एसडीपीओ बड़का गांव, इंस्पेक्टर साहब और थाना प्रभारी लोग थे उसमें। तो हमारी इस टीम ने सफलतापूर्वक 5 लोगों की गिरफ्तारी की है, जो टीएसपीसी का एक ग्रुप चला रहे थे। इसमें जो उनका लीडर था वो जोनल कमांडर प्रशांत जी उर्फ अवधेश कुमार, और आदित्य गंजू, देवन गंजू, धर्म गंजू और रूपलाल गंजू, ये 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इनके पास से 5 वेपन भी मिले हैं, जिसमें एक M4 रेगुलर वेपन है, एक पिस्टल है, 3 देसी कट्टा है और सभी वेपन के टोटल 28 लाइव कार्ट्रिज हम लोग को मिला है। इसके अलावा जो धमकी में प्रयोग हुआ था वो मोबाइल फ़ोन भी मिला है। टोटल 9 मोबाइल हम लोगों ने सीज किया है। जो पर्चा का वो इस्तेमाल जगह जगह पे करते थे, उसकी पूरी बुकलेट हम लोग को मिली है। अन्य हम लोग को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और पता चला है कि इसी गिरोह के द्वारा पिछले कुछ महीनों में न केवल हजारीबाग में बल्कि रांची, चतरा, रामगढ़, लातेहार, हो सकता है किसी और जिले में भी कई घटनाओं को कारित किया गया था लगातार और धमकी दिया जा रहा था। हथियार देखने को मिला है सर, यूएस मेड हथियार है, वो यहाँ है सर। झारखंड की हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद बिक्री का खुलासा करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों की निशानदेही पर झाड़ियों से देशी पिस्टल भी जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वो हथियारों की सप्लाई श्रीवास्तव ग्रुप को करते थे। हाँ, ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है इस एरिया में, हजारीबाग, चतरा, रांची और आस पड़ोस के जिलों में रामगढ़, तो उसमें एक श्रीवास्तव गैंग है, आप लोग इससे अवगत भी होंगे। श्रीवास्तव गैंग के 2 महत्वपूर्ण सदस्य हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। उसमें एक है बिट्टू, और जो कि आर्म्स सप्लाई का काम करता था, वो आर्म्स को असेंबल भी करता था। और वो आर्म्स सप्लाई जिसके पास करता था वो है शेरू, तो वो रामगढ़ का रहने वाला है, अशरफ खान, तो उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया। जिसके पास से हम लोगों को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो अमन साहू का गिरोह है, उसमें जो बाकी लोग जुड़े हुए हैं उनके मनी ट्रेल के बारे में जानकारी मिली है। तो महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हम लोगों ने सीज किया है, करीब 1.5 लाख रुपए, 2 रेडी टू यूज़ वेपन पिस्टल, कुछ एक्स्ट्रा और मटेरियल जैसे 2 और मैगजीन है, स्प्रिंग है, ट्रिगर्स हैं, ये सब हम लोगों ने सीज किया है। और इसके आगे हम लोग जो हम लोग के पास दस्तावेज आए हैं उसके बेसिस पे हम लोग आगे भी अपना अनुसंधान जारी रखेंगे और अग्रतर कार्रवाई करते रहेंगे। ये करीब 1 साल से जुड़ा हुआ है, 1 साल के लगभग से आर्म्स सप्लाई कर रहा है। इस लेयर में भी और भी कई सारे लोग हैं जिनके विरुद्ध छापेमारी अभी चल रही है। लगभग ये 15 के आसपास का हमको लगता है कि सप्लाई किया है, अलग अलग लोगों को। लोकल मेड है या लोकल मेड सर, कोई और आपराधिक इतिहास? हाँ, पहले भी आर्म्स एक्ट के केस में जेल जा चुके हैं ये। खबर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से है, जहां हरजसपुरा गांव में रात्रि अज्ञात चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया। मंडलगढ़ उप प्रधान बंटी धाकड़ व अन्य ग्रामीणों ने थाना
काठछोला के बाहर बढ़ती चोरियों को लेकर रोष प्रकट किया है। थाना प्रभारी श्रद्धा मचौरी के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। पीड़ित रामेश्वर धाकड़ ने बताया कि मेरे घर से 4 ताले तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और 20,000 की नकदी चुरा ली गई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। ग्राम पंचायत सरतला के हरजिसपुरा ग्राम में रात को करीब 12 बजे चोरों ने, अज्ञात चोर थे लगभग 4, और उन्होंने रात को चोरी की तो सामान चुरा के ले गए और हमारा बहुत नुकसान करके गए। उनकी मोटरसाइकिलें जो हमने रात को पकड़ ली और हमारे 2 मोटरसाइकिलें उनकी पकड़ में आ गई और चोर फरार हो गए। और देर रात तक हम उनका पीछा किया, अपने में नाकाम रहे। तो देर रात को पुलिस में सूचना की क्या? पुलिस ने हमने रिपोर्ट करा दी अभी। तो रात को पुलिस आई? पुलिस आई थी एक बार और मौके पर आ गई थी और सुबह वापस बुला के उनको मोटरसाइकिल वापस मिला दी। रात को हमारे घर में अज्ञात चोरों द्वारा मतलब सोने के 1.5 तोला सोने के रामनामी मांदले और हाथ के मतलब पाव के चांदी के कड़े और पाव के चांदी के पायजामे लेके चले गए। देर रात तक गांव वालों और हमने पीछा किया लेकिन हम नाकामयाब रहे। और सुबह 4 बजे उनकी मोटरसाइकिल हमारे गांव के बंदे में खाई में मिली, दोनों बाइक, और हमने सुबह उनको पुलिस को सुपुर्द कर दिया। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के मारकुंडी टोल के समीप काली स्कॉर्पियो सवार लोगों द्वारा कलिंगा जीएम की गाड़ी ओवरटेक कर 10 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। जनपद सोनभद्र पर आज शाम को अजय कुमार रजक, जो कलिंगा कमर्शियल कंपनी में ड्राइवर का कार्य करते हैं, ने सूचना दिया कि वह कंपनी के जीएम एचआरडी श्री डीके नायक को लेकर निजी कार्य से रॉबर्ट्सगंज आ रहे थे। लोढ़ी टोल प्लाजा पर काली स्कॉर्पियो सवार लोगों के द्वारा उनका पीछा किया गया और ओवरटेक कर उनकी गाड़ी रोक ली गई। ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि उन 5 लोगों में से एक संतोष कुमार पांडे को मैं पहचानता हूं। इन लोगों के द्वारा मेरा फ़ोन छीनकर कंपनी के एचआर को फ़ोन कर 10 लाख रुपयों की मांग की गई है। इस सूचना पर थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 5 लोगों को मैं वाहन के साथ गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अभियोग में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां ऑपरेशन के बाद प्रसूतक की मौत को लेकर परिजनों ने रामा अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मृतका के पति ने बताया कि महिला की मौत को बेहोशी का नाम देकर उसे जबरन वाराणसी रेफर किया गया और लाखों रुपए का लालच देकर मामले को रफा दफा करने की बात कही। मृतका के मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिवार ने पुलिस से मामले को लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। रोहित कुमार सर, क्या हुआ है यहाँ? सर डिलीवरी केस था। अच्छा। सुबह में यहाँ एडमिट किया गया, डॉक्टर खून बोले वो सब मिला यहाँ, और डिलीवरी हो जाने के बाद बोला गया कि माँ और बच्चे स्वस्थ, ये बोल के मिलने नहीं दिया गया 4 घंटे किसी को। उसके बाद ये लोग दवा मांगते गए, हम लोग देते गए, पैसा देते गए, हर एक चीज़ दी। अचानक बोले कि रेफर करना होगा, सबको उबर बुलाए हमारे भाई लोग के। अचानक एम्बुलेंस में लाद के बनारस के लिए रेफर कर दिया गया। जब भाई मेरा चढ़ा उसमें तो डेथ हो चुकी। जल्दी जब ओवर ब्रिज पर चढ़ने लगा गाड़ी, वो चेक किया तो डेथ हो चुकी। उसके बाद एम्बुलेंस रुकवा के हम लोग घुमाए थे। मरीज का क्या नाम है? जिसकी डेथ हुई उसका क्या नाम है? उनका अंजू देवी नाम है। उनके हॉस्पिटल में हुआ है हादसा? रामा हॉस्पिटल। ऑपरेशन कौन किया है? यहाँ डॉक्टर किए होंगे सर। क्या नाम है डॉक्टर का? तो नाम नहीं पता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।